ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آج 6 دسمبر بابری مسجد کو یاد کرنے کا دن۔ آنے والی نسلوں کو اس شرمسار کرنے والے واقعے سے واقف کرانا ضروری۔ صرف چند دکانیں بند، پولیس کا بندوبست۔ آنے والے انتخابات کے بعد میٹرو ٹرین کو ایل بی نگر تا حیات نگر وسعت دی جائے گی۔ موسیٰ ندی پر 14 پل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ایل بی نگر میں ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب سے کے ٹی آر کا خطاب۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ جمعے کو مائنڈ اسپیس جنکشن تا شمس آباد ایئرپورٹ تک میٹرو ریل کے تعمیری کاموں کا رکھیں گے سنگ بنیاد۔ وزراء کا جائزہ اجلاس۔ رین بازار پولیس اسٹیشن کے حدود میں خاتون کا بے رحمانہ قتل، سلنڈر سے سر پر حملہ، حملاور کی تلاش جاری۔ سیبرآباد پولیس نے انسانی اسمگلنگ اور لڑکیوں کو جسم فروشی کے کاروبار میں ڈھکیلنے والے بین الاقوامی ریکٹ کا پردہ کیا فاش، 17 افراد گرفتار۔ کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا کی پریس کانفرنس۔ اور گوپال پورم پولیس نے سارقوں کی 4 رکنی ٹولی کو کیا گرفتار، 2 کاریں، 13 موبائل فون ضبط۔ کمرشل شاپس فار سیل ایٹ ٹوری چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، شیخ پیٹ کے نئے برج سے پہلے۔ معاون زمزم لبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر، پارکنگ کی سہولیت اور 2 لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم۔ نماز کے لیے مخصوص جگہ۔ آج ہی اپنی شاپ یا آفس بک کرائیں، جس میں ملٹی برانڈ شو رومز، آفیسز، بینکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن پیش کرتے ہیں 3 پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج، مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام نورانی لباس، ٹوری چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال اینڈ ملک پیٹ۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آج 6 دسمبر ہے، بابری مسجد کو یاد کرنے کا دن۔ یہ وہ دن تھا جب ہندوستان کے سیکولرزم اور دستوری اقدار کو رون دیا گیا تھا۔ اس دن کو ملک کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو جو کچھ ہوا اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آنے والی نسلوں کو اس واقعے سے واقف کرانا ضروری ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ 6 دسمبر 1992 کو شہید کی گئی بابری مسجد کی یاد ہمیشہ ذہنوں میں سمائی ہوئی ہے اور تا قیامت تک اس کی یاد دل و دماغ میں بسی رہے گی۔ 6 دسمبر 1992 وہ دن تھا جس دن نہ صرف ایک مسجد کو گرایا گیا تھا بلکہ ہندوستان کی سیکولرزم، اس کے امن و بھائی چارے کی روایات کو رون دیا گیا تھا۔ عدالت میں حلف نامہ داخل کرنے کے باوجود بھی اس وقت کی حکومت بابری مسجد کو بچانے میں ناکام رہی۔ ہزاروں پولیس ملازمین کی موجودگی کے باوجود بھی بابری مسجد کی گنبدیں گرتی رہیں۔ فرقہ پرست بغل گیر ہو کر جشن مناتے رہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی رہیں، شرنگیز نعرے لگائے جاتے رہے۔ ملک میں فسادات کا دور شروع ہوا، گھروں کو آگ لگا دی گئی، کئی معصوم موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کے پارینہ اوراق الٹ کر دیکھیں تو اس ملک پر کئی حملے ہوئے، یہاں کے بے قصور عوام کا قتل ہوا۔ بابری مسجد کی شہادت بھی ایسا ہی واقعہ ہے جہاں پر قتل و غارت گری ہوئی، معصوموں کا خون بہایا گیا۔ ہندوستان کا سیکولرزم اور دستور شرمسار ہوا، لیکن کسی کو اس کی فکر نہیں ہوئی۔ بابری مسجد مقدمے کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا۔ بابری مسجد شہادت کے ملزمین کو راحت بھی مل گئی، لیکن 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کرتے ہوئے جس ایجنڈے کی بنیاد رکھی گئی تھی
آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اس ملک میں مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ کبھی دھرم سنسد میں نسل کشی کی بات کی گئی، لڑکیوں کو حجاب پہننے سے روکا گیا، عبادت گاہوں پر زعفرانی پرچم لہرائے گئے، بیف کے نام پر لنچنگ کی جاتی ہے، ریلوے اسٹیشنز ہو یا پھر سڑک کے کنارے نماز پڑھنے پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 6 دسمبر نے ایسا لگتا ہے کہ ایک نئے ہندوستان کی بنیاد رکھی جس میں نفرت، حقارت کو فروغ دیا جانے لگا، لیکن پھر بھی آج بھی ملک میں امن پسند اور مذہبی رواداری کو برقرار رکھنے والے موجود ہیں جو فرقہ پرستوں کی سازشوں کو ناکام بناتے آ رہے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد لبرہن کمیشن کو تشکیل دیا گیا، لیکن آج تک اس کمیشن کی رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور کمیشن کی رپورٹ گرد و غبار کی نظر ہو گئی۔ ملک کی آزادی کے بعد سے کئی فسادات ہوئے، ایک طبقے کو نشانہ بنایا گیا، تحقیقات کے لیے کئی کمیشن بنے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہر سال 6 دسمبر آتا ہے، ہر سال بابری مسجد اپنے تاریخی وجود کا احساس دلاتی ہے۔ موجودہ اور آنے والی نسل کو بابری مسجد کی تاریخ اور اس کے ساتھ پیش آئے واقعے کو یاد دلانا ضروری ہے۔ بھلے ہی بابری مسجد کو انصاف نہیں ملا، لیکن ابھی شہنشاہوں کے شہنشاہوں کا انصاف باقی ہے۔ آج 6 دسمبر کے موقع پر آئیے بابری مسجد کو یاد کریں، اس وقت ہوئے گھناؤنے اور بھیانک فسادات کے شہداء کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ہمیشہ بابری مسجد کو یاد کرتے رہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ 6 دسمبر کا دن ہندوستان کی جمہوریت میں ہمیشہ سیاطین کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اپنے ٹویٹر پر بیرسٹر اویسی نے لکھا کہ بابری مسجد کی توہین اور اس کا انہدام ناانصافی کی علامت ہے۔ جو لوگ اس کے انہدام اور تباہی کے ذمہ دار تھے انہیں کبھی بھی قصوروار قرار دیا نہیں گیا۔ ہم اس سے کبھی نہیں بھول سکتے اور ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی اسے یاد رکھیں گی۔ ڈی جے ایس نے بابری مسجد کی اسی مقام پر تعمیر کا مطالبہ کیا ہے۔ 6 دسمبر کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے تنظیم کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ مسجد تا قیامت مسجد رہتی ہے اور بابری مسجد بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس موقع پر بابری مسجد کی اسی مقام پر تعمیر کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بابری مسجد کی شہادت کی یاد کے موقع پر صرف چند تاجرین نے ہی اپنے کاروبار کو بند رکھا، دوسری بڑی دکانیں کھلی دیکھی گئی۔ پولیس کی طرف سے ویسے غیر معمولی بندوبست کیا گیا تھا۔ شہران مارکیٹ کے پاس بم اسکواڈ کو تلاشی لیتے ہوئے اور جانچ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ شہر میں کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ مسجد اجالے شاہ سعید آباد میں احتجاجی جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ریاست کے وزیر بلدی نظم و نسق وائی ٹی کے ٹی راما راؤ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں پھر ٹی آر ایس کی حکومت آئے گی اور کے سی آر ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ کے ٹی آر نے منگل کو ایل بی نگر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا، جس میں ہندو شمشان گھاٹ، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے قبرستان شامل تھے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کہا کہ ناگول اور ایل بی نگر تک میٹرو مکمل ہو چکی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ناگول اور ایل بی نگر کے درمیان 5 کلومیٹر کے راستے کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ آئندہ انتخابات کے بعد ایل بی نگر سے حیات نگر تک میٹرو کو وسعت دی جائے گی۔ گڈیا نارا میں ٹیمز ہاسپٹل قائم کیا جا رہا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ حیدرآباد کے ہر کونے میں اب ہریالی نظر آ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مکتی گھاٹ 16 کروڑ روپے کے مصارف سے تعمیر کیا گیا۔ 985 کروڑ روپے کے مصارف سے نالوں کے کام جاری ہیں۔ 52 کروڑ روپے کے مصارف سے پیرزادی گوڑے کے پاس پل کو تعمیر کیا گیا۔ حیدرآباد میں عظیم تر بلدیہ کے تحت موسیٰ ندی پر 14 پل تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں ریاست کے عوام کی بہبود و ترقی کے لیے مسلسل کام جاری ہیں۔ غریب عوام خوشحال رہیں، اسی مقصد سے حکومت کام کر رہی ہے۔ کے ٹی آر نے اس موقع پر آسرا پینشن، شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے ساتھ ساتھ کے سی آر کٹ جیسی اسکیموں کا حوالہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی ہمہ-جہتی ترقی حکومت کا مقصد ہے۔ تلنگانہ ترقی کی ایک عظیم مثال ہے اور یہ ایک علامت بن چکا ہے۔ کے ٹی آر نے ارکان اسمبلی پر عوامی مسائل کی یکسوئی کو ترجیح دینے پر زور دیا۔
इस मौके पर मेयर अजीमतर बल्दिया विजय लक्ष्मी, रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, मुतालिका रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी के अलावा टीआरएस के अरकान मुकर्रना भी मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 9 दिसंबर को राजेंद्र नगर पुलिस ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के इंतजामात के सिलसिले में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, मेयर जितन सिंह, विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता, मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने इजलास में शिरकत की। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि मेट्रो रेल का दूसरा मरहला एक अजीम प्रोजेक्ट होगा। 9 दिसंबर को सुबह 10 बजे वजीर आला की चंद्रशेखर राव माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर मेट्रो रेल तामीर का संघीय बुनियाद रखेंगे। बाद में वजीर आला राजेंद्र नगर पुलिस ग्राउंड पहुंचेंगे और वहां जलसे से खिताब करेंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद एक आलमी शहर के तर्ज पर तरक्की कर रहा है। वजीर आला केसीआर, वजीर बल्दी नज़्म केटीआर की क़ियादत में तेलंगाना ने तमाम शोबजात में तरक्की की है। फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लिंक रोड के मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। हैदराबाद तरक्की के मामले में दुनिया के बड़े शहरों से मुकाबला करेगा और ये हमारे लिए बासे फख्र है। रियासती वजीर ने बताया कि अब तक 30 करोड़ लोग मेट्रो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। 63 किलोमीटर तक की मेट्रो रेल खिदमात फराहम की जा रही हैं। आगे और भी तरक्की होगी। इस तकरीब में टीआरएस के अरकान मुकर्रना ने भी शिरकत की। रियासत के शोबे सेहत और खानदानी बहबूद में 1147 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया गया है। मेडिकल हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये एलामिया जारी किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी में 26, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजियोलॉजी की 26, असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी की 31 और दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर की जायदादें भी इसमें शामिल हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालाकुंडा हलके के लिए नए डायलिसिस सेंटर के क़याम की तजवीज़ पेश की थी, जिस पर वजीर सेहत हरीश राव ने मुस्बित जवाब दिया और कहा कि अंदरून 2 दिन में इसका क़याम अमल में लाया जाएगा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने हलके के अवाम की तरफ से वजीर सेहत से इज़हार तशक्कुर किया। प्रशांत रेड्डी का कहना था कि देही इलाकों में रहने वालों को डायलिसिस के लिए तवील फासला तय करते हुए निजामाबाद या फिर हैदराबाद के हॉस्पिटल जाना पड़ता है। प्रशांत रेड्डी की तरफ से की गई नुमाइंदगी पर मुकामी अवाम ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर निजामाबाद जिले के टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। मरकजी तहकीकाती एजेंसी सीबीआई ने टीआरएस के रुकन कौंसल कविता की दरखास्त को कबूल करते हुए 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे उनकी कमगा पर मौजूद रहने से इत्तेफाक किया है। वाज़ेह है कि कविता ने सीबीआई की नोटिस पर कहा था कि वो 11, 12, 14 या 15 दिसंबर को सीबीआई की टीम से मुलाकात कर सकती हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि 6 दिसंबर को सीबीआई की टीम कविता से मुलाकात कर सकती है। कविता ने कहा था कि वो 6 दिसंबर को नहीं मिल सकती। अब सीबीआई की टीम कविता की दी हुई तारीख 11 दिसंबर को उनसे उनकी खामगाह पर मुलाकात करेगी। दूसरी तरफ टीआरएस पार्टी के रुकन राज्यसभा के केशव राव ने कहा कि सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल जमाती इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए केशव राव का कहना था कि हुकूमत अपनी एजेंसियों की मदद से गैर बीजेपी हुकूमतों को हरासा कर रही है। ये जमहूरी और दस्तूरी तौर पर बिल्कुल मुनासिब नहीं। उनका कहना था कि दूसरी पार्टियों के कायदीन ने भी इस सिलसिले में अपने मौक़िफ़ से हुकूमत को वाकिफ कराया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में 8 लाख एकड़ पट्टाराजी को मुतनाज़ा फहरिस्त में शामिल किए जाने से मुतल्लिक़ मकतूब को मफाद आमा की दरख्वास्त में तब्दील किया है। इस सिलसिले में अदालत को बताया गया था कि तेलंगाना में धरनी पोर्टल के क़याम के बाद 8 लाख एकड़ पट्टा अराजी को मुतनाज़ा फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। इससे किसान अपनी अराजी फरोख्त करने से कासिर हैं। किसानों की तरफ से बताया गया कि वो महकमे माल के ओहदेदारों से रुजू होंगे ताकि उनकी पट्टा अराजी को मुतनाज़ा फहरिस्त से निकाला जा सके, लेकिन मुतल्लिका ओहदेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब अदालत ने किसानों की शिकायत को मुफाद आमा के तहत दरख्वास्त में तब्दील किया है। शहर में मंगल की सुबह महकमे इनकम टैक्स की तरफ से कई कंपनियों के डायरेक्टर्स के मकानात और दफातर पर धावे हुए हैं। ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियों के मालिकान के दफातर पर धावे किए गए।
वंशीराम बिल्डर्स के चेयरमैन सुब्बा रेड्डी और डायरेक्टर जनरल रेड्डी के मकान पर भी धावा किया गया और वहां भी तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ये धावे जुबली हिल्स रोड नंबर 45 के पास किए गए। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। तेलंगाना के बास लीडर्स के मुबैना सरमाकारी की इत्तलात पर यह धावों की इत्तला मिली है। विजयवाड़ा में YSRCP के लीडर देविनेनी अविनाश के मकान पर भी धावा किया गया है। सोमाधोरा ग्रुप, वासवी बिल्डर्स और फ्यूनिक्स ग्रुप के दफातर पर भी धावों की इत्तला मिली है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मंगल को दारुस्सलाम में 20 दरखास्त गुजारों में 11,50,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। चार मीनार के करीब सकाफती विरसे के हामिल सरदार महल से बलदिया के दफातर नरकी, फूलबाग, चनानगुट्टा मुंतकिल कर दिए गए, लेकिन जाते जाते बलदी अमला व ओहदेदारों ने अहम दस्तावेजात, स्टैंप्स, लेटर पैड्स, बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट, अवाम के वोटर आईडीज व कई मुख्तलिफ साजो सामान को कचरा समझकर फेंक दिया। जब भी हैदराबाद में इंतखाबात आते हैं तो कई लोग ऐसी शिकायतें करते हैं कि पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या तो फिर फहरिस्त राय दहिंदगान में उनका नाम दर्ज नहीं है। क्या उसकी वजह ये लापरवाही है? धोखेबाज अक्सर ये बल्दिया के रबर स्टैम्प्स इस्तेमाल करते हुए डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। इसकी वजह क्या ये लापरवाही है? बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं और दफ्तर दर दफ्तर फिर कर थक हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साबिका बल्दी दफ्तर सरदार महल में इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है, जहाँ पर हजारों बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट मौजूद हैं। साउथ जोन का बल्दी दफ्तर जो आज सरदार महल में मौजूद नहीं, नरखी फूल बाग चला गया, लेकिन आज भी यहाँ पर ऐसे कई अहम दस्तावेजात हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, या तो ये कचरे की तरह पड़े हैं, इतने अहम दस्तावेजात जिसकी वजह से काफ़ी लोग को परेशानी होती है। ये पुराना दफ्तर और आम आदमी ये सवाल कर रहे हैं कि ये लापरवाही किसकी है और इसका जिम्मेदार कौन है। चार मीनार के दामन में वाक़े सकाफती विरसे के हामिल सरदार महल की अब तज़े-नो की जाएगी। इस मुकाम पर एक तवील अरसे तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफातर काम कर रहे थे। अब ये दफातर नरकी फूलबाग में तामीर करदा नई इमारत में मुंतकिल कर दिए गए हैं। गो के ये दफातर अब नई इमारत से काम कर रहे हैं, लेकिन सरदार महल से जाते हुए बलदिया के मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारों ने अहम दस्तावेजात के फाइल्स, हजारों वोटर्स आईडी कार्ड्स, पैदाइश व अमवात के बेशुमार सर्टिफिकेट्स, इंजीनियरिंग शोबे के सामान और कई अहम अशिया जिससे बलदिया के सरकारी स्टैम्प्स, स्टैम्प पैड्स, लेटर पैड्स को कचरा समझकर छोड़ दिया। वोटर्स आईडी कार्ड्स सरदार महल के बैतुल खला में पाए गए। कई दस्तावेजात बिखरे पड़े देखे जा सकते हैं। इन अहम दस्तावेजात व सामान का जिम्मेदार कौन है? इस सिलसिले में जब जोनल कमिश्नर से बलदिया के नए दफ्तर में रब पैदा किया गया तो उन्होंने इस पर रद्देमल देने से ही इनकार कर दिया। बलदिया के सरकारी स्टैम्प्स व पैड्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जिनके वोटर आईडी कार्ड कचरे में पड़े हैं वो किस तरह इसे हासिल कर सकते हैं? दफ्तर की मुंतकली तो की गई, लेकिन अहम दस्तावेजात व सामान की शायद ओहदेदारों व अमले को कोई फिक्र नहीं। अब ये खाली इमारत गैर मजाज पार्किंग की जगह बन चुकी है। हम बार बार जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट से मिलने की कोशिश की, या तो वो किसी मीटिंग्स में रहते हुए हमें वक्त नहीं दिया या फिर वो ऑफिस पर अवेलेबल ही नहीं थे।
तो अब देखना ये होगा कि पुराने दफ्तर सरदार महल से जो अहम दस्तावेज़ात है कितने जल्दी हटा लिए जाते हैं और लोगों को उससे सहूलत मिलती है। काशिफ अली खान के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के हमरा शासीपुरम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन की मौजूदगी में कारमिल गिरजाघर के इलाके में जारी सीवरेज के लाइन के कामों का मुआयना किया और जरूरी हिदायत दी। वाज़ेह है कि सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्का असम्बली राजेंद्र नगर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है ताकि मकीनों को सहूलतें पहुँचाई जा सकें। दौरे में महकमे आवारसानी व सीवरेज और बलदिया के अहदेदार और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सरकारी मुलाजमीन की तंजीम तेलंगाना उद्योग कला संगम ने सरकारी मुलाजमीन अहदेदारों के खिलाफ एंटी करप्शन मुकदमात की आजलाना यकसुई का मुतालबा किया है और कहा कि खाती अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए लेकिन बेकसूर करार पाने वालों के साथ इंसाफ हो। संगम के सदरनशीन ए पद्माचारी ने मीडिया को बताया कि चंद आला अहदेदारों की मां पर ये मुलाजमीन और अहदेदारों पर बिना किसी ठोस शवाहिद के दावे किए जा रहे हैं। इन दावों की वजह से इन मुलाजमीन और अहदेदारों को कई मुश्किलात बल्कि समाजी बाइकॉट का सामना है। इन मुकदमात की मुताल्लिका मुलाजमीन व अहदेदारों की वजीफे पर सबकदोशी के कई साल बाद तक भी यकसुई नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त मुकर्ररा के अंदर इन मुकदमात की यकसुई कर ली जाए जिनके खिलाफ सबूत पाए जाएं, यकीनन उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इन दावों के जरिए कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन मुतासरा की छवि पर एक गहरा दाग लग रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मंगल को एक बार फिर इंसानी अज़ा की हॉस्पिटल मुंतकिली के लिए ग्रीन चैनल का इंतजाम किया। बताया गया कि किम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली से किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद तक का 18 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय किया गया। किम्स हॉस्पिटल गच्चीबौली से तबाही तौर पर मुर्दा शख्स का दिल लेकर एम्बुलेंस 10:02 पर रवाना हुई, जो 10:20 पर सिकंदराबाद किम्स हॉस्पिटल पहुंची। साल 2022 में अब तक 34 बार इंसानी आज़ा की मुंतकली को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर यह भी देखा जा रहा है कि अवाम की तरफ से भी काफी ताउन किया जा रहा है। नामपल्ली स्टेशन रोड के पास वाक़या इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक श्री गणेश एजेंसी में इलेक्ट्रॉनिक अशिया का सामान था, अचानक उसमें आग लग गई। रात के वक्त ये वाक़या पेश आया, इसलिए किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर रेसलिंग मुकाबलों के फातेह पहलवानों ने मंगल को शहर की मशहूर शख्सियत उमर बिन अहमद बलाला से मुलाकात की। पहलवानों की गुलपोशी और शालपोशी की गई। इस मौके पर खालिद बामास, असलम कालिया चौधरी और किरण कुमार यादव भी मौजूद थे। उमर बिन अहमद बलाला ने पहलवानों से मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहर की मशहूर दरगाह हजरत सैयद गुलाम हुसैन अहमद अली शाह मिर्जा सरदार बेग के 134वें सालाना उर्स तकारीब का पीर को आगाज हुआ। मंगल को सजादा नशीन व मुतवली मौलाना गुलाम मोहम्मद मीर हुसैन अली की क़यादत में जुलूस संदल माली दरगाह शरीफ वाक़े आगापूरा पहुंचा। चारशंबे को चिरागा व महफिल समात मुनक़िद होगी और जुमेरात को कुल की महफिल के साथ इन 4 रोज़ा उर्स तकारीब का अख्ताम होगा।
संदलमाली के मौके पर ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून को बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया। मुतालिका पुलिस ओहदेदार ने बताया कि पीर और मंगल की दरमियानी शब 2 से 3 बजे के दरमियान इत्तला मिलने पर जब ड्यूटी ऑफिसर मुतासरा मुकाम पहुंचे, वहां पर खातून खून में लुत्फ पाई गई थी और वो फौत हो चुकी थी। उनका कहना था कि 1 या 2 लोग आए थे और नशे की हालत में बहस व तकरार के बाद खातून पर हमला किया गया। शुबा किया जा रहा है कि सरेंडर से खातून के सर पर हमला किया गया। क्रूज टीम को मुकाम वाक़े पर तलब कर लिया गया। महलूक खातून की शिनाख्त 46 साला परवीन बेगम की हैसियत से की गई है। यह भी पता चला है कि महलूक खातून के शौहर ने भी खुदसोजी कर ली थी और उनकी बेटी ने भी शादी के कुछ महीने में ही फांसी लेकर खुदकुशी की थी। पता चला है कि उनके खानदान में आपसी झगड़े बहुत हुआ करते थे, लेकिन इस कत्ल के पीछे मुबैना नाजायज ताल्लुकात भी बताए जा रहे हैं। रेन बाजार पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। सैबराबाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग और लड़कियों से जिस्म फरोशी का कारोबार कराने वाले बैनुल अक़वामी हाईटेक रैकेट को बेनकाब किया है। कमिश्नर पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स रैकेट के गैंग के 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक 5 सितारा होटल का मैनेजर भी शामिल बताया जा रहा है। इनके कब्जे से MDMA ड्रग्स और 34 मोबाइल फोन जब्त किए गए। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 2 महीनों से यह ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। तकरीबन 14,000 लड़कियों को ब्रोकर्स की तरफ से गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेला गया। इन लड़कियों को मुख्तलिफ मकामात से बाजियाब कराया गया है। ऑनलाइन वेबसाइट, व्हाट्सएप ग्रुप्स और दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए यह कारोबार किया जा रहा था और इसके लिए एक मखसूस वेबसाइट बनाई गई थी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि शहर में 20 होटल्स में कमरे बुक किए जा रहे थे। ब्रोकर्स व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपस में राब्ता किया करते थे। ग्राहकों और लड़कियों के क़याम का भी इंतजाम किया जाता था। 915 लड़कियों को मुंबई और कोलकाता से मुंतकिल किया गया। 2019 में समीर नाम एक शख्स ने 850 लड़कियों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल कराया था। अनंतपुर, करीमनगर से भी कारोबार किया जा रहा था। सैबराबाद, रच्चाकोंडा और हैदराबाद में अर्नब नामी शख्स ड्रग्स के अलावा जिस्म फरोशी का कारोबार चला रहा था। अर्नब 950 लड़कियों के साथ हैदराबाद में इस कारोबार को अंजाम दे रहा था। सोमाजी गुड़े में अर्नब का प्लॉट बताया गया, जहां से MDMA ड्रग्स को जब्त किया गया। मुलाजमत से महरूम परेशान हाल लड़कियों को मुलाजमत दिलाने के बहाने जिस्म फरोशी के दलदल में ढकेला गया था। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि तकरीबन 40 लाख रुपए का एक शख्स कारोबार कर रहा था। गिरफ्तार किए गए अफराद के खिलाफ PD एक्ट लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। गोपालपुरम पुलिस ने सारिकों की 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए 2 कारें और 13 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। मीडिया से बात करते हुए DCP चंदना दीप्ति ने बताया कि चिलकलगोड़ा क्रॉस रोड के पास तलाशी मुहिम के दौरान गोपालपुरम पुलिस ने 4 अफराद खालिद, महबूब बादशाह, हसन और मोहम्मद खान को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने 2 वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। इनके पास से 2 कारें और 13 मोबाइल फोन जब्त किए गए। DCP के मुताबिक ये टोली गोपालपुरम और बोनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वारदातें अंजाम देती है। इस टोली का एक रुकन मफरूर बताया गया है। गोपालपुरम और बोनपल्ली पुलिस में 2 शिकायत दर्ज हुई थी और पुलिस ने उसकी तहकीकात करते हुए इस टोली को गिरफ्तार किया है। DCP ने कहा कि लिफ्ट देने के बहाने टोली कार में बिठाकर मासूम अफराद को सुनसान मकाम पर ले जाती, चाकू से धमकाकर उनका सामान लूट लेती। 2000 की कार किराए पर लेकर ऐसी वारदातें अंजाम दी जा रही थी। DCP ने आवाम से अपील की है कि अगर उनका मोबाइल गुम हो गया या कोई उनसे छीन लेता है तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं ताकि ऐसे सारिकों तक पहुंचा जा सके। जवाहरनगर के देवेंद्र नगर में एक ज़ईफ शख्स पर मुबैना हमला किया गया। मुतासरा शख्स मोहम्मद पाशा ने बताया कि YouTube चैनल चलाने वाले रवि और श्रीनिवास का नाम लेकर उनके घर पर संगबारी की गई। उन्होंने बताया कि उनकी अराजी पर जबरन कब्जे की कोशिश की जा रही है। मोहम्मद पाशा ने मुताल्लिक़ा DCP से इस सिलसिले में अपील की है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और अशरार के खिलाफ कार्रवाई करें।
इस्लामिया बाजार अर्बन हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने खिदमात को बाकायदा न करने पर पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की। इस वाक़े से हेल्थ सेंटर में सनसनी देखी गई। डॉक्टर वसन की तरफ से नारेबाजी की गई। मुतासरा डॉक्टर ने इंसाफ का मुतालबा किया है। मानकाली पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स पर मौलिक हथियार से हमला करते हुए 14 तोले के जेवरात छीन लिए गए। तफसीलात के मुताबिक हिमायत नगर के राधे ज्वेलर्स में काम करने वाला पवन जेवरात लेकर रानीगंज सिटी होटल से आ रहा था। अचानक उस पर हमला करते हुए 14 तोले के तिलाई जेवरात छीन लिए गए। पुलिस ने जख्मी पवन को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आसपास के सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया जा रहा है। मानकाली पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। आज 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को याद करने का दिन। आने वाली नस्लों को इस शर्मसार करने वाले वाक़े से वाकिफ कराना जरूरी। सिर्फ चंद दुकानें बंद, पुलिस का बंदोबस्त। आने वाले इंतखाबात के बाद मेट्रो ट्रेन को एलबी नगर ता हयात नगर वसअत दी जाएगी। मूसा नदी पर 14 पुल तामीर किए जा रहे हैं। एलबी नगर में तरक्याती कामों की इफ्तिताई तकरीब से केटीआर का खिताब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव जुमे को माइंड स्पेस जंक्शन ता शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल के तामीरी कामों का रखेंगे संगे बुनियाद। वज़रा का जायजा इजलास। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हदूद में खातून का बेरहमाना कत्ल, सिलेंडर से सर पर हमला, हमलावर की तलाश जारी। सैबराबाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग और लड़कियों को जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेलने वाले बैनुल-अक़वामी रैकेट का पर्दा किया फाश। 17 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और गोपालपुरम पुलिस ने सारिकों की 4 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। 2 कारें, 13 मोबाइल फोन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।